بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو درنو خوږو کتونکو السلام علیکم زه جابر شاه ستاسو په درانه خدمت کې خپلې خپرونې خیر خبر د بلوچستان سره حاضر یم قدرمنو یقینا تېرو ورځو راسې موږ د کوم د خیر خبرو چې کله خبره وکړو نو تېرو ورځو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې داسې وړې غټې پیښې هم وسوې 14 اګست شاوخوا شپو ورځو کې او دې سره سره د عوامي نیشنل پارټۍ چې ګوند سره تعلق لرونکی چې یو کوم کس ولو د ملک صاحب د کوچلاک اوسیدونکی و نو هغه نامعلومه وسلوالو چې وړی و بیا یې قتل کړی و مړ کړی و د پیسو ډیمانډ یې کوی غوښتنه یې کوله هغه بیا ډېرې بېدردۍ سره شهید کو او د هغه جنازه یې چې و هغه ورته راستولې او بلې خواته تېره ورځ د پولیس د لیویز اهلیکارو باندې چې زیارت په سیمه کې کومه بمي چاودنه سوې وه په هغه کې چې کوم کسان شهیدان سوي وو د هغه لواحقین او د علاقې چې کوم خلک دي هغه بقاعده توګه باندې هغو درنه ورکړې ده او نن چې دی د پښتنو چې کومې سیمې دي په هغه کې هم درنه روانه ده د نواب ایاز خان جوګزی صاحب چې لاړخه نو یقینا په دې درنه کې هم ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی دی او بلې خواته نن چې دی په کوټه پریس کلب کې چې د صحافیانو لاړخه د شهداو صحافیان چې ولو د هغه ورځ ولمانځل سوه یقینا په بېلابېلو وختو کې زموږ د بلوچستان چې کوم صحافیان دي هغه په نښه سوي ولو شهیدان کړلي سوي ولو چې د هغه لپاره یوه لویه غونډه ایښې سوې وه چې په کوم کې د اپوزیشن لیډر چې وو هغه هم ګډون کړی و او ورسره چې د زموږ د بلوچستان چې کوم نوموړي صحافیان دي هغو هم ګډون کړی ولو هغو ویناوې هم وکړلې نو د دې لپاره چې دوی ما سره میلمانه به هم وي خو د هغه د مخه به زه دغه درته ووایم چې ټلیفون نمبر چې دی هغه زموږ 08128400084 دغه زموږ ټلیفون نمبر دی 08128 0084 په دې باندې موږ سره تماس هم نیولی شي چې آیا د زموږ په سیمو کې دغه بدبختیانې چې دي دا به تر ابده کله پورې دا ختمیږي او دا ولې نه ختمیږي اصل کې د دې ذمه داره څوک دي آخر به دا ذمه داري څوک اخلي چې دغه ستونزې زموږ دپاره حل کړي چې نه صحافي محفوظه دی او نه چې دی عام وګړی محفوظه دی نه نواب او سردار محفوظه دی نو د دې لپاره به موږ ته څوک داسې اقدام وکړي داسې څوک ګام به پورته کړي چې دغه شخړې چې دي د اواري سي او بلې خواته سی پیک پر نامه باندې چې کوم دلته کارونو چې دي هغه روان دي لکه ګوادر دي ورماړه دي پسني دي ګوادر دي داسې مکمل دغه سیمو کې د سی پیک په حواله باندې نو ویل کېږي چې د سی پیک ناکامۍ لپاره چې دي په دې سیمه کې شخړې چې دي هغه اکثر وختو راسي نامعلومه خلک چې دي هغه راسي او یا نامعلومه خلک چې دي دلته دوی ته پیسې ورکوي چې تاسو دغه ورانۍ وکړئ نو دې وجې نه هغه سی پیک چې دی هغه کله کله د تعطل شکار سي نو یقینا سی پیک نه بلوچستان ولس ته څه ګټه ده هغه موږ په بېلابېلو خپرونو کې موږ دغه کړی دی ډسکس کړی دی یعنی موږ په هغه باندې خبرې اترې کړي دي نو په دې کې زه دغه ووایم چې یقینا دلته بلوچستان کې چې کومه بېروزګاري ده هغه هم زور اخیسته دی او موجوده حکومت چې کله راغلی دی د جام کمال صاحب نو دوی هم دغه وعدې دعوې وکړلې چې امن امان سره سم موږ به د ولس چې کومې عام نورې داسې ستونزې دي هغه به هم حل کوو او د هغه لپاره به ګامونه پورته کوو خو د دې دمه هېڅ قسمه داسې ګام نه دی پورته کړل سوی چې پر هغه باندې عام ولس ته چې ده هغه فایده رسېدلې وي او ولس یې دا نن هم د بېروزګارۍ سره مخ دي او 14,000 نه زیات نوکاریانې چې دي هغه په بلوچستان کې دغه پراتی دي او تر دې دمه پورې پر هغه باندې داسې بېروزګاره زموږ چې کوم ځوانان دي هغو ته ټایم نه دی ورکړلی سوی چې وخت ورکړي رای ولي و هغو نه انټروګانې وکړي و هغه چې دي په دغو نوکاریانو باندې ولګوي او که چیرې انټروګانې سوي دي هم هغه هم د تعطل شکار سوي دي او کله هم دوی راوځي ځوانان کله مظاهرې وکړي او د مظاهرو پس چې دي زموږ صوبایي حکومت هغه ته شنه باغونه ورښکاره کړي بیا چې دی هغه مظاهرې چې دي هغه ختم سي وعدې دعوې خو وسي خو بیا هغه نوکریانې یا هغه روزګار چې دي دغو خلکو ته نسي ورمیلاو او دې سره سره پخوا به چې کوټې ښار چې دی دا یو ډېر ښایسته ښار و د دې آبادي چې وه د 1915 زلزلې پس دغه ښار چې و صرف د 15,000 یا 50,000 نفوسو لپاره چې هغه ترتیب کړلی سو د دیګالیانې کوڅې
هر شی په هغه ډول باندې چې دی کې په 50,000 نفوس چې دی هغه به ژوند تیري خو د هغه پس چې دی ورو ورو وخت تیرېدو سره سم د کوټ ښار آبادي چې ده هغه 150 لکه نه پورته سوله چې دې وخت کې د موټرانو د ګاډیانو د رکشو او د نور دغه چې دي دونه رش وي د ریډیانو چې انسان چې دی په هغه کې نسي تېرېدلی او سکول ته چې کوم ماشومان ځي یقینا هغه هم لویو ستونزو سره مخ وي او دې سره سره چې کوم هسپتالو ته چې کوم امبولانسز روان وي هغه هم لویو ستونزو سره مخ وي نو قدرمنو په دې لړ کې تاسو خپله ستونزه خپله مسله موږ سره د ټلیفون په لیکه تماس نیولی سي سکرین باندې چې دی هغه نمبر روان دی نو په هغه نمبر باندې چې که تاسو فون وکړئ او ستاسو چې کومه غوښتنه وي یا ستاسو چې کومه مسله وي ستونزه وي د ستا د علاقې نو یقینا ستاسو د اواز چې دی تر اعلی حکمنانو پورې رسي نو نن په دې خپرونه کې ما سلمان اشرف صاحب چې دی دا مدعو کړی و کوم چې صدر بلوچستان یونین اف جرنالیست دی او دې سره رشید بلوچ صاحب چې کوم سینیر جرنالیست دی او لیکوال هم دی نو د بده مرغه لکه څنګه چې نورې محکمې دي چې کوم دغه یونینز وي او څونه هغه مخلصي لري د خپل فیلډ سره یا کوم مینه لري یا محبت لري یا څونه سیریسه دي دا خلک نو یقینا د دې څخه پته لګېږي چې دا خلک تر دې دمه پورې نه دي راغلي او د دوی کرسیانې چې دلته خالي دي او نو ما ویل دوی سره دا خبرې وکړو چې د بلوچستان چې کوم صحافیان دي دوی ته داسې کومې ستونزې ورپېښې دي او د ستونزې خو ګردو طور معلومې دي چې دې وخت کې چې دا صحافیان داسې خبر نسي چاپولی چې د هغه څخه رښتیا وي ولې په هغه رښتیاو کې خبرونه داسې چې ډېر رښتیا داسې دي چې بیا د سړي په غاړه کې ورپرېوځي چې اوس یې نو حل کوه نو بیا داسې خلک هم شته نامعلومه وسلوال چې هغه بیا دړکې ورکوي ولي وژني نو یقینا دغه مسلې دي او همدارنګه نور داسې ګڼ شمېر مسلې چې د دوی رهایش دی د دوی سکیورټي ده د دوی تحفظ کول دي دارنګه غټې غټې ستونزې دي او کوم چې شهیدان سي د هغو ته ریلیف ورکولو لپاره کومک کولو لپاره چې کوم اعلانات وسي هغه په کوم ډول دی نو یقینا هغه زه به دغه درته ووایم چې کوم شهیدان سوي دلته کسان دي جرنالیست یعنې صحافیان خبریالان نو هغو کورنۍ چې ده هغه هم نن هم چې دي په دې وخت کې هم دربدرۍ سره مخ دي د هغو د سکول ماشومان چې دي هغه سکول ته دغه سکول فیسیز یعنې فیسونه چې دي دغه او همدارنګه د کور خرچې ګیس دی بجلي ده د کور کرایه ده نو دا هم یوه لویه المیه ده چې د دې لپاره تر دې دمه پورې نه صوبایي حکومت کې داسې ګام پورته کړل سوی صوبایي حکومت خو چې دی هغه ډېرې دعوې او وعدې کوي او 4 کروړ روپۍ چې دي هغه دوی میډیا لپاره ایښي دي سالانه نو ته ماته دا ووایې چې 4 کروړ روپۍ چې دي یقینا دلته دونه ډېر اخبارات دي او میډیا هاوسز دي او دغه الکترونیک میډیا کوم ته چې ویل کېږي لکه د ټلویزیونان دي دغه شته دلته او دې نه علاوه چې دي اخبارات یو چې دي په مارکیټ کې راځي او یو چې دي داسې ډمي اخبار ورته ویل کېږي چې برای نام بس یو نوم یې چلیږي نور چاپ کېږي نه نو یقینا هغه 4 کروړ روپۍ چې دي هغه الله سره د خیره سره چې دي هغه جیبو ته سره ولویږي او کوم اصل چې کوم اخبارات یا میډیا هاوسز دي هغو ته هغه اشتهار نه ورسیږي د اشتهار په مد کې یقینا ټلویزیون دی که اخبار دی که یو داسې نور ادارې دي د میډیا هغه نو هغه چې دي په اشتهاراتو باندې چلیږي ولې دغه ورکرز وي دغه دفتر کرایې وي دغه بجلی بل دی د ګیس بل دی نو داسې نورې داسې مسلې دي چې هغه په اشتهاراتو باندې کله چې اشتهار ورمیلاویږي نو هغه ادارې چې دي سروایو کولی سي او هغه چې دي خپل میډیا هاوس چې دي هغه چلولی سي نو صوبایي حکومت چې دی د بلوچستان د دغو ستونزو حل کولو لپاره وعدې دعوې هر شی وکړو خو د بده مرغه تر دې دمه پورې هېڅ قسمه په دې باندې خبرې اترې چې دي هغه خو وسوې خو عمل نه دی پر سوی نو دغه عمل به څوک کوي او څنګه به کوي په دې باندې همیشه موږ دلته ډیبیټس کوو خبرې پر کوو دلته زه وزیران ایم پی ایز راغواړم نو دلته نو په دې کې یقینا که موږ ووایو چې موږ خپله ذمهداري هم ده موږ که خپله ذمهداري پوره کړو نو حکومت به هم کیدای سي چې دی هغه به دلته پاملرنه وکړي اصل کې موږ په خپله چې دی د خپلې ادارو سره خپله مخلصه نه یو نو همدغه وجه ده چې بیا صحافیان چې دي هغه د لوی بدبختیو سره مخ دي او عام ولس چې دوی ووټ هغو خلکو ته ورکړي چې هغه لالی کله اسمبلي ته ولاړ شي نو بیا عام ولس ځینه هیر وي نو که دربنو ټلیفون نمبر هم ما تاسو ته وښولو چې 08128400084 یعنې 08128400084
نو تاسو په هغه باندې تماس نیولی سي موږ سره خپله خبره شیر کولی سي دلته ماته ویل کېږي چې وابخلو یو وړه شانتې دمه دمې ورسته به راځو دې سره به خوږې خوږې خبرې کوو هیله لرم چې زموږ چې کوم میلمانه دي دوه هغه هم را رسېدلي وي چې هغو سره به هم بیا خبرې اترې وکړو خو د یوې وړې شان دمې نه پس تاسو ته خپلې خپرونې کې یو واره بیا هر کله وایم یعنې نیمه ګنټه تېره شوه زموږ صحافي برادري چې دا هغه څونه سیریس دي د خپل کار لپاره یعنې دغه نه ته اندازه واخله زموږ چې کوم سلمان اشرف صاحب دي صدر بلوچستان یونین اف جرنالیست دی نو ما هلته منت وزاري ورته وکړئ ما له راسې نن چې دی په دغه زموږ په دې خپرونه کې چې دی تی ګډون وکړئ او د صحافیانو په مسلو باندې خبرې اترې وکړئ نن یو دا د میډیا خلک دي دا د میډیا کسان دي چې دوی ته دا شور معلومه ده چې د میډیا چې کوم ټایمینګ دی هغه څونه ارزښت لري څونه دغه دی چې هلته وخت اخیستی سوی دی او بلې خواته یقینا بیا په نورو ځایو کې چې وګورئ او که یو د چا پریس کانفرنس دی هغه سړی که لږ خاشه لیډ سو دوی بیا واک اوټ ځینې وکړي یا الله ستو مدد بیا ځینې ولاړ سي نو په دې کې چې رشید بلوچ صاحب چې دی سینیر جرنالیست و کالم نگار نو دا موږ ته پروگرام ته راورسېدی د خیر سره رشید بلوچ صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں شکریہ جی کیا راستے میں رش تھا کیا ہوا تھا دیکھیے کوئٹہ کے ٹریفک آپ کو پتہ ہے تھوڑا میرے خیال میں آپ کا انتظار کر رہا تھا میرے انتظار میں تھے تو اس بیچ میں کنفیوژن ہو گئی تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں ٹھیک ہے اچھا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ سلمان اشرف صاحب جو کہ ہمارے صدر ہیں بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے تو اب یہ دیکھیں نا پروگرام کے لیے میں نے بلایا اور ٹائمنگ انہوں نے دے دی ہاں کر لیا نہیں تو میں کسی اور وزیر ایم پی اے کو بلا لیتا کسی اور مسئلے کے اوپر میں بات کر لیتا آج میں چاہ رہا تھا کہ آج جس طرح بلوچستان یونین آف جرنلسٹ نے صحافیوں کے نام پر جو شہداء ہے ان کے نام پر جو ہے نا وہاں پر ایک سیمینار ٹائپ کا رکھا اور ان میں ان کو اخراج تحسین بھی پیش کیا اور ان کے لیے دعائیں بھی کر لی گئی ان صحافیوں کے لیے جو شہید ہو چکے ہیں مختلف ادوار میں بم دھماکوں میں ٹارگٹ کلنگ میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح ہماری تنظیمیں رہی یا اس طرح ان کی فوٹو سیشن تک رہی تو کیا سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے لیکن جی ایک تو ظاہر ہے کہ جن سے آپ نے ٹائم لیا ہے اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے اور وجہ کیا تھی میں اس پہ ظاہر ہے کہ ڈبیٹ نہیں کرنا چاہتا باقی یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا ٹینیور ہم تھے ہم نے اس میں کافی کام کیا تھا اپنے جرنلسٹ جو برادری ہے ہماری اس کے لیے دیکھیں اس وقت تک گزشتہ اگر دیکھا جائے 2001 سے اب تک کوئی 44 کے قریب جو ہے ہمارے جرنلسٹ مارے گئے ٹھیک ہے نا اور اس میں 24 ایسے ہیں جن کو اسپیسیفک ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا جی جی ہمارا یہ معاملہ تو ہے اب تھریٹس ہمیں ابھی بھی ہیں ایسے نہیں ہے کہ ابھی نہیں ہے لیکن میرے خیال میں وہ جو تھریٹس کا جو ریشو ہے وہ تھوڑا شاید کم ہوا ہو یا اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہوا ہو لیکن تھریٹس اب بھی موجود ہیں ابھی ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے شہداء فاؤنڈیشن بنائی ہے اپنے لوگوں کے لیے شہداء فاؤنڈیشن ان صحافی جو خاندان ہیں ان کے لیے تھوڑا بہت جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کو ہم مالی حوالے سے دیگر جو ایشوز ہوتے ہیں بچوں کے اسکول وغیرہ وہ اکوموڈیٹ ہم کر رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ جب تک ہم ہیں تو ہم اس کو کریں گے رہی بات حکومت کی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس 44 جرنلسٹ کی میں بات کر رہا ہوں ان میں سے 24 کی جو اسپیسیفک ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے لوگوں کو کس نے ٹارگٹ کیا ہے ٹھیک ہے آج تک ہمارے لوگوں کی FIR تک نہیں کاٹی گئی ہے دیکھیں عموماً کوئی بھی ایشو ہوتا ہے یا کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے کوئی مارا جاتا ہے کم سے کم پولیس یہ تو کرتی ہے نا نامعلوم افراد کے خلاف تو FIR چیک کرتی ہے ٹھیک ہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ اتنے ہمارے اسٹرگل کے باوجود حکومت نے آج تک ہمارے لوگوں کا FIR تک نہیں کاٹا ہے زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہے کہ جی جو لوائقین ہیں ان کو ہم تھوڑا بہت مالی تعاون کریں اکوموڈیٹ کریں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے وہ بات میں مان لیتا ہوں
लेकिन कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें थ्रेट्स कहाँ से हैं, हमें मार कौन रहा है। मुमकिन ये भी है कि मुझे थ्रेट कोई और कर रहा है और मार कोई और रहा है। सही। ठीक है ना, ये इश्यूज हैं बलूचिस्तान में। और इसको जब आप कलम उठाते हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो क्या आप यानी जब मैं सोच रहा हूँ, क्या आप 100 दफ़ा नहीं सोचेंगे उसके ऊपर कि मैं ये लफ्ज़ अल्फाज जो है ये मेरे लिए बेहतर होंगे, क्योंकि ज़िंदगी का भी सवाल होता है। देखें, एक तो ये कि ज़ाहिर है कि आप हकीकत लिख नहीं सकते। जी जी। जब हम लिखते हैं तो हम ज़रूर सोचते हैं इस पर कि ये अगर मैंने ये आर्टिकल लिखा है या ये रिपोर्ट मैंने लिखी है, इसमें से ऐसे कौन से वर्ड हो सकते हैं जिसको मैंने दोबारा जो है रीचेक करके उनको मैंने सॉफ्ट करना होता है। ठीक है ना, नहीं तो कहीं ना कहीं से फ़ोन आएगा और वो नंबर भी शो नहीं होता है कि किसने मुझे फ़ोन किया। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए, एक ऐसा वक्त भी हमने गुजारा, हमारे सामने धमाके होते थे, हमने अपने लोगों की लाशें भी उठाई, अपने ज़ख्मी भी उठाए। एक ऐसा भी दौर था, ऐसा भी दौर होता था सामने आके आपके ऑफिस में बैठ के अगला बंदा बंदूक टेबल पे रख के आपसे कहता था कि आपने ये रिपोर्टिंग ऐसे की, फलाने के हक में किया, ये किया, ये सारा हमने फेस किया है, हमें पता है। लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता था कि हम घर से निकलते थे, यकीन माने हमें बिल्कुल ये यकीन नहीं होता या ये उम्मीद नहीं होती कि हम शाम को फिर अपने घर पहुंचेंगे। सही। ठीक है, और घर वालों को हमने बिल्कुल ये बताया हुआ था कि निकल तो रहा हूँ, पता नहीं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। ये सिचुएशन हमने गुजारी है। फिर ज़ाहिर है कि फैमिली है वो आप सिर्फ अपने लिए परेशान नहीं होते, अगर अपने ज़ात की परेशानी हो बंदा बहुत कुछ फेस कर सकता है। सही। जब आपकी परेशानी जो है आपकी फैमिली और ख़ानदान तक आ जाए तो बहुत जगह जो है आप कमज़ोर पड़ जाते हो। तो आप नहीं समझते कि है सहाफ़ियों में जो है ना यूनिटी नहीं है? आज आपने देखा कि आज उनका दिन मनाया जा रहा था सहाफ़ियों के दिन के हवाले से, शुहदा के, तो आपको 4 बंदे ही बमुश्किल प्रेस क्लब में नज़र आए वो सेमिनार में। देखें, ये एहसास पे है। मैं समझता हूँ जो जितने सीनियर लोग थे जिन्होंने तमाम टेन्यूर फेस किया है, गुज़िश्ता 15-20 साल जिन्होंने फेस किया है, वो ज़रूर उधर मौजूद थे। जो नए हमारे लोग आए हैं जिनको गुज़िश्ता सिचुएशन का पता नहीं है, उनके वो हिस्ट्री का हमारी पता नहीं है कि हमने किस किस मुश्किलात से यहाँ तक हम आए हैं, या थोड़ा बहुत वो रिलैक्स हैं। मैं भी उसमें आपका हाथ है, उसमें किसी और सीनियर का हाथ है, उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत शायद हाथ हो सकता है। ये उनको शायद वो इतना बड़ा बिल्डिंग जब देखते हैं वो ये समझते हैं कि ये किसी खैरात में गवर्नमेंट ने इन लोगों को बना के दिया है, जबकि उसका कलर से आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि ये हमारे खून से बना है, हमारे साफियों के खून से बना। देखिए, मैं आपको दुनिया में मेहनत की हुई है। जी देखिए, एक तो आप जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, अभी जो हमारे नए लोग आते हैं वो ज़ाहिर है बैठ के कैंटीन में चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, कहीं पे उन्होंने मूवी देखना मूवी देख लेते हैं, अपना एक शोगल मेला करके शाम को घर चले जाते हैं। ठीक। उनको ये नहीं पता ये जो 2 मंजिला बिल्डिंग बनी है और ये जो ग्रासी बनी है, इसमें जो पूल लगे हैं, इसमें जो सीनियर्स हैं जिन्होंने मेहनत की है उनका कितना बड़ा मेहनत इसमें शामिल है। सही। देखिए, ये एहसास की बात होती है, सिर्फ मैं जर्नलिस्ट की बात नहीं करूँगा, हर तबके में जब आपको अपने लोगों का एहसास होगा, आप ये समझेंगे अगर कोई बंदा मारा गया हमारे बीच नहीं है, आप एहसास करके उसके साल में एक बार आके उसको आप याद करेंगे तो ये आपके एहसास है, आप समझते हैं कि वो मेरा फैमिली मेम्बर है। अगर आप नहीं आते, वो एहसास आपके अंदर नहीं है, तो इट इज़ मीन कि वो आप उनको अपना नहीं समझते। ठीक। अच्छा रशीद बलोच साहब, वैसे सलमान अशरफ साहब ने आज का हमारा जो प्रोग्राम का जो टॉपिक था वो सहाफ़ियों का था, उन्होंने जो है ना इसमें वो नहीं रंग में बंग डाल दिया। ठीक है, तो वो टॉपिक ही गड़बड़ कर दिया। अभी बलूचिस्तान के ऊपर बात करते हैं। सहाफ़ी अपनी जगह पर, बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, सी पैक हम करते हैं। बेसियत जर्नलिस्ट कालम निगार, आप क्या समझते हैं कि ये सी पैक है क्या? अभी तक हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं वो नावाकिफ़ है इस चीज़ से, काफ़ी अरसा हो गया। सी पैक हम टेलीविज़न पे भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, अखबारात में भी करते हैं, लेकिन आम लोगों को उनके समारात का पता नहीं है क्या भाई कब आएगा हमारा सी पैक? देखिए, सी पैक तो किसी एक रोड का मेरे ख्याल में नाम नहीं है, या 1-2 प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं है जिसे हम कहें कि जी ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो होगा। सही। मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी के दौर में जो मुआहदा हुआ था चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद नवाज शरीफ का टेन्यूर मुशर्रफ का आया, एक
एक पीरियड चला उसमें। अगर आप 1998 से लेके 92 से लेके अगर आप ये पूरा टेन्योर देखें, आपको बहुत सी चीज़ें सीपेक के हवाले से नज़र आती है। ठीक। फिर मामला ये कि हमारे यहाँ KPK में या बलूचिस्तान में एक चीज़ हमेशा हमारे नेशनलिस्ट ये कहते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी आपने रोड यहाँ से गुजारनी है, दूसरा कहते हैं जी नहीं यहाँ से गुजारनी है, ये कॉरिडोर जो रोड है वो कहते हैं कि ये शुमाली है, ये जुनूबी है। ठीक। ठीक है। और हो सकता है कि बहुत से लिंक्स हों सीपेक के साथ, कुछ रोड्स हों जैसे M8 है, M9 है, बहुत से इलाके हैं उसमें आ जाते हैं उसमें। अभी मामला ये है कि नवाज शरीफ का जो 5 साल टेन्योर गुजरा, चाइनीज़ के साथ जो मुआहदा सीपेक से मुतल्लिक जिन जिन प्रोजेक्ट्स का हुआ, ठीक, उसमें मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किसी को एतमाद में न लिया या उसको पब्लिक नहीं किया, शेयर नहीं किया, उस एग्रीमेंट को उन्होंने शेयर नहीं किया। इवन के बलूचिस्तान में 2 कॉन्फ्रेंस जमातें, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी, कोलिशन थी मरकज़ में भी और सूबे में भी। हमने कई बार PK मैप की लीडरशिप से और नेशनल पार्टी की लीडरशिप से इससे मतलब जब बात की, उनको भी ज़्यादा मेरे ख्याल में जानकारी नहीं थी। सही। ये तमाम एक टाइम पे तो हमारे नेशनलिस्ट पार्टियां ये कहती जो अपोजिशन पे थे, वो कहते थे कि हसन इकबाल ने सीपेक का पूरा जो मुआहदा है, हाँ, उसको जो है कोई किताबचा बना के अपने संदूक में रख दिया है, जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है, जिस वर्ग की ज़रूरत पड़ती है वो कर लेता है। लेकिन फिर एक हमारे यहाँ एक और भी बात की जाती है कि सीपेक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पंजाब में लगे हुए हैं, इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई गलत बात भी नहीं है। देखिए, जो मरकज़ में बैठा हुआ जो भी हुकूमत होगी, वो उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि उसने KPK को कितना शेयर देना है सीपेक में से, पंजाब को कितना देना है, बलूचिस्तान को कितना देना है, सिंध को देना है। ठीक। मेरा ज़ाती राय ये है कि जैसे कि तरपारकर में कोयला से बिजली वगैरह पैदा करने की एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, वो सीपेक का हिस्सा है। इसी तरह उस कराची की सफाई का एक हो गया, बहुत सारे और चीज़ें हैं। किसी हद तक सिंध ने अपना हिस्सा सीपेक में से ले लिए, ठीक, लेकिन KPK और बलूचिस्तान ने अपना हिस्सा आज तक वो नहीं ले सके, ना वो ऐसा प्रपोजल दे सके हैं जिससे जो है उसको सीपेक में शामिल किया जाए। अच्छा, इसके अलावा जो है सिंधक प्रोजेक्ट में बलूचिस्तानियों को और वहाँ के मकामी लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है अभी तक? देखिए, मैं पता नहीं आपका इत्तेफाक हुआ है नहीं हुआ है सिंधक जाने का। मैं गया हूँ सिंधक, मैंने वहाँ पे विज़िट किया है। वहाँ पे मेरा ज़ाती राय है, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमने कलेक्ट की है, उसमें पहला जो मुआहदा हुआ था सिंधक का चाइनीज़ के साथ, वो मुआहदा ख़त्म हो गया। पहले 2% जो है वो था बलूचिस्तान का था, 50% चाइनीज़ का था, 48% मरकज़ी गवर्नमेंट का था। वो प्रोजेक्ट का टेन्योर ख़त्म हो गया। फिर दूसरा आया, उसमें थोड़ा फिर बलूचिस्तान का उन्होंने शेयर बढ़ा दिया, 5 कर दिया। तीसरा फेज़ जब आ गया, फिर उन्होंने बलूचिस्तान का 15% कर दिया। ठीक है ना। इस तरह अगर ये 15% या 20% पहले दिन जब मुआहदा हो रहा था उस टाइम कर लेते, हमारी गवर्नमेंट, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, हो सकता है बलूचिस्तान को इससे काफ़ी सारा फ़ायदा भी पहुँचता है। अच्छा, मौजूदा हुकूमत जो है और अपोजिशन में यकीनन जी जब से आए हुए हैं, एक तरफ जो है हमारा बलूचिस्तान स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो साहब और वज़ीर आला बलूचिस्तान के दरमियान जो है ये आपस में अंदर में मिले हुए हैं क्या, या बस अपना टाइम पासी 5 साल पूरे करने के चक्करों में जब भी ऐसा कोई डेवलपमेंट की बात आती है और लोगों की वो जो मसाइल है वो हल करने की बात जब आती है तो दोनों में एक महीने, 6 महीने, साल तक वो क्लैश रहता है और उसके बाद जो है फिर शीरो शक्कर हो जाते हैं? ये है क्या ड्रामा असल में? देखें, अंदर की कहानी तो बहुत लंबी है। सही। ठीक है ना। अगर हम इसको कहें कि दोनों शीरो शक्कर है, मेरे ख्याल में नहीं है। सही। मामला दरअसल इख्तियार का है। इस वक्त जाम कमाल खान साहब वज़ीर आला हैं, उसके पास इख्तियार है, उसकी मर्ज़ी है वो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के हल्के इंतखाब में उसको फ़ंड दें या ना दें। ठीक है। और कुद्दूस बज़ंजो के हल्के इंतखाब में अपना कोई कज़न जो है वहाँ पे वो आगे के लिए तैयार कर रहे हूँ। ठीक है। ज़ाहिर है जब
वज़ीर आला की जानिब से स्पीकर के हल्के इंतखाब में अपना कोई कज़न वगैरह तैयारी का जब मराल में है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको फंडिंग भी हुई होगी, काम भी हुए होंगे, उसकी मर्ज़ी का जो है इंतज़ामिया भी आया होगा। तो इससे डेफिनेटली जो कुदुस बिजन है उसको तकलीफ़ तो होगी। अच्छा, तकलीफ़ होगी। फिर मसला ये है कि ये बयानबाजी जो आते रहते हैं, तो वो फिर बयानबाजी होती है। फिर मेरे ख्याल में फिर आज सवाल ये पैदा होता है, जब इतना क्लेश है, या तो स्पीकर बलूचिस्तान साहब रिज़ाइन कर लें जाके अपने पब्लिक के अंदर, जी मुझे काम नहीं करने दिया, ये है ये है, इसलिए मैंने जो है वो अपना ओहदा छोड़ दिया, मैं आके बैठ गया हूँ, या बस अभी तो सिर्फ हवाई फायरिंग करके चला जाता है, या ये करना चाहिए, ये स्पीकर साहब खुद नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात यह है कि वज़ीर आला साहब को ये करना चाहिए कि वो कहेंगे कि यार मेरी पार्टी का बंदा है, मेरे ख़िलाफ़ हर 2-3 महीने के बाद आके मीडिया पे बैठ के मेरे ख़िलाफ़ बातें करता है, तो वो फिर स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का कोई कर ले, उसको साइड कर ले और किसी और बंदे को स्पीकर बना ले। लेकिन आइनी तौर पर स्पीकर का बहुत बड़ा ओहदा है। अगर CM जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं बलूचिस्तान के, तो असम्बली के दायरे कार के अंदर तो स्पीकर का भी बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा आइनी रोल है उसका। तो ये मामला वो शफ से चल रहे हैं, अभी तक शफ्तालू हुआ नहीं है। ठीक है ना? तो नहीं, आप नहीं समझते कि इन दोनों के क्लैश से, इन दोनों के ड्रामे से, मैं तो फिल्मी अदाकार समझूंगा इन दोनों को कि ये फिल्मी अदाकारों की तरह एक्टिंग करके फिर चले जाते हैं, लेकिन रुल रहा है आम गरीब बंदा, वो इसलिए कि उनके काम रुके हुए होते हैं। क्योंकि असम्बली इजलास में जब वहाँ पर अपोजिशन की जानिब से अवामी हलकों के हवाले से जब बात की जाती है, तो बीच में इन लोगों के सब जुमले बीच में आ जाते हैं। तो फिर इसी तरह जब वज़ीर आला साहब अगर किसी की उसके ऊपर साइन नहीं करेगा, तो वो प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल होगा? मेरे ख्याल में बयानबाजी से कोई प्रोजेक्ट रुका नहीं है सही अब तक। ये ज़रूर है कि अपोजिशन के हलकों में वज़ीर आला साहब ने उस तरह के फंडिंग नहीं की है, अगर की भी है तो वो अपोजिशन अरकान असम्बली के ज़रिए नहीं किया है, वो किसी और के ज़रिए किया होगा, नहीं डेफिनेटली किया अच्छा है। इस ये क्या माजरा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब कह रहे हैं कि जी अपोजिशन वाले खामा में नाराज़ हो रहे हैं, ये जो बजट की तैयारी थी, मुझे खुद आखिरी दिन तक जब अनाउंस हो रहा था तो मैंने भी आप लोगों की तरह असम्बली ही में सुना कि ये कितना बजट है, ये क्या चक्कर है? देखें, एक चीफ एग्जीक्यूटिव से ये तो मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए थी कि वो मीडिया के सामने आके कहें कि जी मुझे बजट 2 घंटे पहले मिला है। हाँ। तो मैं अपोजिशन को कैसा दे उसको मैं शेयर करता हूँ, मैं मतलब शेयर करता उसको कि यार ये देखो क्या हो रहा है उसमें। तो यही सवाल है कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को नहीं पता, तो बजट के लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीने लगते हैं बनाने में। तो ये 3 से 4 महीने कौन बना रहा था? ये तो वज़ीर आला साहब से तो ये सवाल करनी चाहिए ना। सही। तो अभी तक तो मिले नहीं है, जब मिलेंगे तो हम ये सवाल ज़रूर करेंगे कि जी ये फिर कौन बना रहा था। देखिए, इससे फिर अपोजिशन का वो मौक़िफ़ बिल्कुल मजबूत हुआ जिसमें अपोजिशन ये कह रही थी कि जी ये आसमान से उतरा है, ये है, या CM साहब जो है वो आसमान से उतरा है ना, इस तरह। फिर एक हद तक CM साहब ने उसको जो है ये मतलब मुतमईन नहीं कर सके, नहीं ये इंडोर्स कर लिया कि जी अपोजिशन बिल्कुल सही कह रही है, मेरा जो है मुझे बजट का नहीं पता था। हाँ। बाकी बयानबाजियों से मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है या रुकेगा। जहाँ पे बलूचिस्तान की मुस्तकबिल को किस नज़र से देख रहे हैं इस वक्त? अगर हम जितनी हुकूमतें गुजरी है उन्होंने सब बागात दिखा के दावे शावे करके 5 साल जो है 4-4 साल 5-5 साल एयर कंडीशन में बैठ के ठंडी हवाओं में, और फिर जो है वो छलते बने अपने टेन्योर पूरा करके। तो मौजूदा जो हुकूमत है जितने दावों वादों के साथ है और आवाम की भी बड़ी उम्मीदें इनसे वाबस्ता थी, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मुस्तकबिल का आप मौजूदा पॉलिसी आप उठा लेंगे, तरक्याती पॉलिसी देखें, दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की पॉलिसी देखें, आप जो है ज़राए आमदन बढ़ाने की आप पॉलिसी देखें, ये आप जब मौजूदा टाइम पे देखेंगे तो आप मुस्तकबिल में कह सकते हैं कि मुस्तकबिल हमारा क्या होगा। मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है
ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई अब तक कि वो अपने रिसोर्सेज कैसे बढ़ाएंगे सही, और ज़राए रोज़गार कैसे बढ़ाएंगे, अपना हेल्थ और एजुकेशन कैसे ठीक करेंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत करेंगे। अब तक इस हुकूमत में मुझे कहीं ऐसा नज़र नहीं आया कि इस हुकूमत की कोई जामे पॉलिसी है जिस पे अगर थोड़ी बहुत ये हुकूमत काम करेगी, फिर अगले टेन्योर में कोई भी हुकूमत आएगी तो वो इसको कंटिन्यू करेगा, तो फिर आप पेशन गोई कर सकते हैं कि अगले 15-20 साल में बलूचिस्तान के मुस्तकबिल में ये चीज़ हो सकते हैं। जब एक चीज़ सिरे से है ही नहीं तो फिर मुस्तकबिल का सवाल तो नहीं पैदा होता ना। जैसे चल रहा है वैसे आगे चलता जाएगा, तो कोई ऐसी मुझे बड़ी जो है तब्दीली नजर नहीं मुस्तकबिल में नजर। अच्छा, 36,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हमारे पास पड़ी है, ये क्यों हर साल वादे दावे करते हैं, वो अनाउंस नहीं करते हैं नौकरियाँ? देखिए, फिर कहते हैं कि जी लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए ना जब से माशाल्लाह से पीटीआई की हुकूमत आई है ना, हाँ, वो नौकरियां खाती जा रही है, खाती जा रही है। बिल्कुल। हाँ। मुझे नहीं पता केपी के सिंध और पंजाब का नहीं पता, मरकज़ में और बलूचिस्तान में नौकरियां नहीं है। ये हम भी कहते हैं कि हर बंदे को सरकार नौकरी नहीं दे सकती, ये इस पे मैं बिल्कुल मैं कायल हूँ, बिल्कुल आप नहीं दे सकते। आया आपने ज़राए आमदन या अपनी रिसोर्सेज इतनी बढ़ाई हैं, या आपने सैलरीज दे सकें? नहीं, आपने इन्वेस्टर्स को आपने बलूचिस्तान में हर जगह स्कोप है, आपने लाया, उनको मुतमईन कर लिया ताकि प्राइवेट सेक्टर में लोग जाके एडजस्ट हो जाएं, वहाँ पे मजदूरी करें, नौकरियाँ करें और अपना मामला आगे चलाएं ज़िंदगी के। चूँकि बलूचिस्तान में कोई ज़राए आमदन और नहीं है, प्राइवेट सेक्शन में कुछ नहीं है। ठीक, जब प्राइवेट सेक्टर में आपका कुछ नहीं होगा, तुम लामाला लोग जो एजुकेटेड लोग हैं वो जब डिग्रियां लेंगे तो वो सरकारी नौकरियों के पीछे पड़ेंगे। सही। आपको पता है, एक तो आपने जो 35,000 नौकरियों की बात की, उसमें मेरे ख्याल में कुछ फिल हो गए, कोई 8-10 हज़ार उन्होंने कर लिए इस 3 सालों में मुख्तलिफ। लेकिन उसमें भी कह रहे हैं कि पैसे लेके, देखिए वो तो है। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि डेरा बगुटी से गौहराम बगुटी MPA हैं, उन्होंने एक ब्रीफ केस भर के CM हाउस आ गया था। सही। CM साहब के सामने खोल के रखा वो ब्रीफ केस कि जी ये पैसे हैं, मेरे इलाके के नौकरियां मुझे दें, हाँ, ये पैसे ले लें, सही, ताकि मैं अपने लोगों को जो है रोजगार वो दे दूँ। जब बिकने ही हैं तो मुझ पे बेच दो, ताकि मैं आगे, पता नहीं वो बेचे या फ्री में दे, वो तो नहीं पता ना। बहरहाल, लेकिन जब किसी हुकूमत में इस हद तक अगर कोई स्कैंडल हो, देखें ना, फिर गुड गवर्नेंस नहीं रहेगी। किसी भी सेक्टर में आपको गुड गवर्नेंस नज़र नहीं आएगी। अभी भी मेरे ख्याल में माशाल्लाह से कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है उसमें जो है वो करप्शन ना हो। मैं एक महकमे में कि नाम, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं एक महकमे का बता सकता हूँ, अगर आप मेरे साथ आना चाहें मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि एक 16 ग्रेड का बंदा 19 ग्रेड पे बैठा है, सही, ठीक है, उसकी मर्जी से तमाम फंड्स न जाने कहाँ जाते हैं। ठीक। अच्छा, उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के पास 40 गाड़ियाँ हैं, कोयटा में, कराची में, लाहौर में, जहाँ जहाँ उनके लोग हैं, बंगले गाड़ियाँ चल रही हैं। ठीक। अच्छा, फ्यूल डिपार्टमेंट उनको पे कर रहा है। ये तो सिर्फ मिनिस्टर की 40 गाड़ियाँ हो गई। फिर उनके जो नज़दीकी जो डिपार्टमेंट के करता पश्तून बेल्ट का भी एक यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों एक वो चल रहा था कि पश्तून, वो भी मुझे पता है, मुझे पता है, उसका भी मुझे पता है, उसका भी मुझे पता है। ठीक है, 1-1.5 साल में करोड़ों की जायदाद, अरबों की जायदाद बना ली। सर देखें, हम कहते हैं कि जी फलाने ने करप्शन तो की होगी, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है। हाँ, कहते हैं ना हम लोग, रूटीन में कहते हैं। सही। नेब भी यही कहता है। खैर अभी तो नेब पता नहीं किस धंधे में लगी है, वैसे जनरली मैं कहता हूँ। एज ए रशीद बलोच मेरी हैसियत आज 10,000 की है। मिनिस्ट्री मिलने के बाद 1 साल के बाद मेरी हैसियत जो है 10 करोड़ की होती है, 5 साल के बाद 10 अरब की होती है। क्या जो इदारा
मेरे ऊपर तहकीकात करेगा मेरे करप्शन का, उसको ये नज़र नहीं आ रहा है कि रशीद बलोच को 5 साल पहले 10,000 की हैसियत थी, आज जो है वो 10 अरब के उस पे प्लॉट्स ले रहे आ हैं, गया। बंगले रहे हैं। तो ये बीच में जो 5 साल के पीरियड में ऐसा क्या गीदड़ सिंगी इसके पास थी जो है वो अरबपति बन गया। देखिए कॉमन सेंस की बात है, ये आप किसी बंदे को बता दें वो आपको, क्या आपको नहीं पता नेशनलिस्ट हों या विफाक परस्त हों, बहुत से लोग कल तक हमारे ऑफिस में आते थे इस बहाने कि हम चाय पी लें, गपशप लगा लें, थड़ों पे बैठ के। अभी एक और सवाल मेरे जहन में, क्योंकि हमारे सहाफ़ी हज़रात भी बलूचिस्तान के जो है वो देख रहे होंगे कि हमारे लिए जो है क्या किया है सहाफ़ती मैदान में, क्योंकि गुज़िश्ता जो हुकूमतें थी उन्होंने वो ऐलाना तो करते थे लेकिन उनकी समारात जो है आज तक सहाफ़ी बरादरी नहीं देखी है। और ये घरों का जो मामला था, आप भी बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो वो घरों का क्या बना? हाउसिंग स्कीम की बात देखिए, हाउसिंग स्कीम में इस गवर्नमेंट ने ये मेहरबानी कर ली जर्नलिस्ट के लिए, उन्होंने हमें एग्जैक्ट लोकेशन दे दी जर्नलिस्ट हाउसिंग के लिए, कॉलोनी के लिए। इलाका अगर अनाउंस कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, फिलहाल ताकि वो दहशतगर्द जो है ना वो वहाँ पे अपना पहले से तैयारी कर ले। फिलहाल तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना, फिलहाल नहीं बता सकता। बहरहाल ये हुआ था। फिर ये है कि जिस इलाके में ये जो हाउसिंग स्कीम की लैंड हमें मिली है, हाँ, वहाँ पे जो रेट है, जो मार्केट रेट है वो कोई 2000 से 2200 पर फीट है, ठीक। लेकिन गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने हमें पर फीट 50 रुपये का दिया है, ठीक है। अभी हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई 150 के करीब लोग काम करते हैं, ठीक। उसमें से शायद 20-25 लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे पे कर सकते हैं 50, ठीक है। बाकी आपके मेजोरिटी में 100 के करीब या 115-20 के करीब ऐसे लोग हैं वो कहते हैं हमें फ्री ऑफ कास्ट दें, ठीक। हुकूमत कहती है कि हम फ्री ऑफ कास्ट देना हमारी पॉलिसी नहीं है। अच्छा, ये लाहौर यानी पंजाब के सहाफ़ियों का और इसी तरह इस्लामाबाद की जो सहाफ़ी हैं और खैबर पख्तूनख्वा के, क्या उनको जो हाउसिंग स्कीम का जो किस्सा है वो भी इसी टाइप का है या उनको फी सबीलुल्लाह दिए हुए? ज़्यादातर फ्री है ना। बाकी सुबह इस्लामाबाद में और लाहौर में KP का मुझे नहीं पता, मैंने उस पर वो नहीं किए, और कराची में यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट दिया है जर्नलिस्ट को। बलूचिस्तान में लैंड फ्री ऑफ कास्ट दिया है। बाकी जो है क्योंकि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद बड़े शहर हैं, वहाँ पे फिर उन्होंने इन्वेस्टर लाए हैं, ये इंस्टॉलमेंट पे उन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने घर बना के दे दिए, ठीक है। ये हुआ, एक नहीं काफ़ी सारे हुए हैं। अभी बलूचिस्तान हुकूमत को ये प्रपोजल हमने दी थी शुरू में, लेकिन वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो पॉलिसी सिंध और पंजाब ने बनाया हो वही हम बना लें। ये हम भी इसलिए इसको बेहतर समझते हैं, अगर 50 रुपया भी है, मैं ज़ाती ऐसे से कह रहा हूँ, सही, इसलिए भी बेहतर है कि कल कोई हमारे प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं कि जी हमने इसको परचेज़ किया, ख़रीद लिया है, ठीक है। ये हमारे लिए बेहतर होगा, जो मैं समझता हूँ। अभी ज़ाहिर है कि हमारे कैमरा मैन है, किसी की 25,000, किसी की 30, किसी की 40, तो वो इकट्ठे कैसे इतने पैसे दे सकते हैं, ये थोड़ी सी एक मजबूरी है, ठीक है। वो ज़मीन तो ले लेगा, फिर बनाने के लिए प्रॉब्लम होगा। देखिए मेरे ख्याल में बनाने में यह है कि अभी आपका जो गुज़िश्ता बजट गुजरा अभी, ठीक है। ये रशीद भाई एक कॉल ले लेते हैं जी। सो खबर क्यों कम जाए ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बुशरा साहिबा कैसी हैं? माशाल्लाह, आपको मुबारक हो, आप ब्यूरो चीफ बनी हैं GTV का। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये हमारी पहली खातून जर्नलिस्ट है जो ब्यूरो चीफ की सीट तक पहुंच गई है, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। और बलूचिस्तान के लिए एक एजाज़ है। क्या कहेंगी? आज मेरे साथ रशीद बलोच साहब बैठे हैं और सलमान अशरफ जो है वो मुलामैन जशार्ड नो, क्या कहेंगे बलूचिस्तान के सहाफ़ियों के हवाले से? आज शुहदाए सहाफ़त के नाम से जो है दिन मनाया गया और सेमिनार हुआ, तो सहाफ़ियों के हवाले से क्या कहेंगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। पहले तो आपका कि इजाज़त साहब, आपने मुझे इतने अहम मौजूद पे बात करने का मौका दिया।
जिस तरह से जब हमने सहाफत में कदम रखा तो उस वक्त भी सूरत हाल हमने यही देखी कि हमारे जो सहाफी हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं और एक हक की जंग लड़ रहे हैं, तो उसमें जो है हमारे कई सहाफियों को टारगेट किया गया। लेकिन जब इस मैदान में हमने खुद कदम रखा और अपनी आंखों से अपने साथियों को जाते हुए देखा तो बहुत दुख भी हुआ, लेकिन एक खुशी इस बात की हुई कि हमारे साथियों ने हक की आवाज बुलंद करने में और उस राह में, सच की राह में जो है अपनी जानें कुर्बान की हैं। हमारे बहुत सारे सहाफी जो है वो कहीं टारगेट किलिंग का निशाना बने, कभी जो है वो बम धमाकों की जद में आकर जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए। लेकिन उसके बावजूद भी उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे नए आने वाले सहाफी या जो फील्ड में पहले से काम कर रहे थे उनके हौसले पस्त नहीं हुए और किसी तौर भी जो है उन्होंने अपने इस प्रोफेशन को नहीं छोड़ा, बल्कि अपने इस प्रोफेशन के साथ जुड़े रहे और नए आने वालों को जो है इससे मुतल्लिक वो आगाह भी करते रहते हैं कि यहाँ आकर इस फील्ड को ज्वाइन करके किस तरह से जो है आप हक और सच की आवाज बुलंद कर सकते हैं। क्योंकि हम पर जो है वो अवाम जो है बड़े एतमाद करती है हम पे, उनको बड़ा यकीन होता है कि हम उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी उनके मसले मसाइल होंगे, हम उसकी आवाज को उठाएंगे और हर फोरम पर जो है हमने इनकी आवाज को बुलंद भी किया है। एक दुख सिर्फ इस बात का होता है कि हमारे जो साथी हैं जिन्हें चाहे टारगेट किया गया या किसी भी बम धमाके की जद में आए, उनके कातिलों को गिरफ्तार करने के हवाले से या उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के हवाले से हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई भी इंतजाम नहीं किए जाते। सहाफी तंजीमें हमारी जितनी भी हैं, हम बारहा आवाज बुलंद करते हैं, मुजाहिरे करते हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो जू की तू उनके कानों पर कोई जू नहीं रेंगती और वो किसी भी तरह से जो है ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग कवानीन नहीं बनाते कि ये वाकयात पहले तो पेश ही ना आए और अगर खासा कोई वाकया पेश आ जाता है तो फौरी तौर पर इकदाम करते हुए ऐसी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं कि ऐसे अनासिर जो हैं उन्हें पकड़कर उनका खात्मा किया जाए ताकि दोबारा जो है वो ऐसा कदम उठाने की हिम्मत ना करें। अच्छा बुशरा, आज आप सेमिनार में बैठी हुई थी, माशाल्लाह आपकी हाजिरी तो थी, लेकिन आपने देखा आपकी दूसरी साथी हमारे जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है या हमारे साथी हैं वो बहुत कम तादाद में आए हुए थे, तो आप क्या समझती हैं कि ये अपने साथियों से मुखलिस नहीं है या अपने शोबे से मुखलिस नहीं है? देखिए, इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। हम अपने साथियों को तनकीद का निशाना भी नहीं बना सकते। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि आज हफ्ते का दिन होने की वजह से अमूमन तमाम दफातर में एक वीकली ऑफ का सिस्टम होता है और रिपोर्टर जो हैं वो एक एक ही मौजूद होते हैं। असाइनमेंट ज्यादा होने की वजह से कुछ हमारे सहाफी जो है वो अपनी असाइनमेंट्स में मसरूफ थे और जैसे ही उन्हें वक्त मिला वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी बने, लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे थे कि जो इसका हिस्सा नहीं बन सके। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो इस शोबे के साथ मुखलिस नहीं है, हो सकता है उनकी कोई मजबूरियां हों, लेकिन चाहे कोई भी मजबूरी हो, उस मजबूरी को एक तरफ रखकर इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा जरूर बनना चाहिए था। इस कॉन्फ्रेंस से ये तो नहीं हो सकता था कि हम मुल्जिमान तक पहुंच सकते या कोई ऐसी कानून साजी कर सकते या कुछ भी ऐसा हो जाता, लेकिन जो यहाँ पर शोहदा के लवाहिकीन भी कुछ बैठे हुए थे उनकी हौसला अफजाई हो जाती कि आज भी लोग उनके साथ खड़े हैं और आज भी उनके प्यारों के लिए हक की आवाज बुलंद करने के लिए वो एक जगह पर मुत्तहिद है। तो हर अपनी मसरूफियत को हर एक को अपनी छोड़ के इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना चाहिए था और यहाँ आकर कम से कम अपनी जो प्रेजेंस है उसको जाहिर करना चाहिए था ताकि जो यहाँ लवाहिकीन बैठे थे उनके हौसले मजीद भी बुलंद हो जाते और जो जूनियर्स हमारे बैठे थे उनके ऊपर भी एक प्रेशर जाता। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। बुशरा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थी। कितनी अच्छी बात की कि अगर आज हमारे साथी सारे आ जाते तो वहाँ पे जो लवाहिकीन बैठे हुए थे कुछ ख़वातीन, तो उनकी हौसला अफजाई होती और उनको अच्छा लगता कि हमारे जो भाई जो शहीद हुए हैं उनके अभी भी इतने साथी यहाँ पे मौजूद है जो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल ना, ये तो फैक्ट है। वो आने चाहिए थे। मैं शुरू में हम बात की थी कि आने चाहिए थे, बुशरा भी यही कह रही है, लेकिन इधर मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। बुशरा मेरे साथ कुलीग थी, सही। हम किसी बम धमाके की इवेंट का कवर करके सिविल हॉस्पिटल से निकल के वापस दफ्तर जा रहे थे, शायद बुशरा को याद होगा, देख रही है तो ये हुआ था कि जैसे ही हम कचहरी के सामने पहुंचे थे, कमिश्नर ऑफिस के सामने से एक दूसरा धमाका हो गया। अच्छा, धमाका हमसे तकरीबन अगर थोड़ा 5 सेकंड अगर हम आगे होते तो शायद हमारी गाड़ी जो है DCNG की शीशे टूट गए थे, हाँ, तो हिट हो जाती। उस टाइम मैंने देखा कि एक बंदा उठता हुआ आके हमारे विंड स्क्रीन पे लगा, मतलब जैसे उसने बम ब्लास्ट ने उसको पुश किया, वो मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहा था तो पुश किया, तो उधर एक फुटेज बनी थी। सही, क्योंकि कैमरा ऑन था, कैमरामैन के हाथ में था, वो पता नहीं कैसे ऑन था, बरल ऑन था।
तो उसमें ये घसीटते चीखते जो जो बनी थी ना वो भी बनी फुटेज जो बनी थी, तो वो आज भी मैं उसको कभी देखता हूँ तो मैं कहता हूँ अगर हम 10 सेकंड थोड़ा सा पहले आ जाते ना तो इस वक्त मैं और बिशरा दोनों शहीद हो जाते। आपकी भी तस्वीरें लगी होती, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह हमारे सारे सहाबी बरादरी को हिफ्ज़ अमान में रखें। नो यकीनन कदरमनु सहाफत ची दी आगा ढेर ग्रान कार दी दा ओस कोन ची फेसबुक क्या वलाड सी ब्रो बस कैमरा मोबाइल ही नहीं वाले ची सही वो कुड़ा गए वो असल सहाफत आना दी सहाफत आगा दी ची द अड़ख हम वड़ांदी का बद अड़ख हम वड़ांदी का और बया ची दागी सी में ची को मशरामी दागो सर खबर या तरी उसी ची आया दगा मसले जिम्मेवार चूक दी और संग दी और सतारा दी और दलता पर सहाफत की खुदा सी दी ची د دې خپل قوانین دي قوانین دغه دي چې فوټیجز یعنی فوټیجز هغه لکه اکثر تاسو په فیسبوکانو کې ګوري چې چیرې ویني مینی چې ښکارای نه هغه فیسبوک په خپل باندې هغه بلایند کی یعنی هغه ته ولا چې سترګې نمایو نشانه ورکړی دي چې هغه باندې داسې کراسي ور باندې ورکړی دي هغه بند کړی بیا چې ته وغواړي هغه ولګي یعنی د دې مطلب دا دی چې د کمزوري زړه والا خلک کم وي او ویس اسیم اخلاقی فرض نه جوړیږي چې انسان چې دی د داسې فوټیجز یا داسې فلم چې دی داسې ویډیو کلیپس چې دی هغه په سوشل میډیا باندې ولګي ویل دغه کورنۍ چې دا د سوشل میډیا داسې فیسبوک چې دا کالو کالو ته دغه ویډیو چې دا پرته ده نو دغه کورنۍ چې دا دغه شهید یا دغه مړي هغه بار بار ګوري نه هغه د پاره بار بار هغه واقعیا چې دا هغه راتازه نو دغه انسانیت په خلاف دی باید چې موږ دې څخه ډډه وکړو رشید بلوچ صاحب ٹائم بھی بڑا کم ہے موجودہ حکومت تعلیم اور صحت کے شعبے میں کتنا مخلص ہے؟ देखिए मुखलिस तो मैं भी हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। शॉर्टकट, हाँ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट रहा। देखें एजुकेशन, और अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये हुकूमत नहीं, जो भी हुकूमत आई है, जब से मैं इस फील्ड में हूँ जर्नलिज्म के, जो भी हुकूमत आई है, हर बजट में उन्होंने कहा है कि एजुकेशन हेल्थ हमारे प्रायोरिटी है, और किसी हुकूमत ने इसको प्रायोरिटी नहीं दी है। आज भी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट अवारान की मैं बात करता हूँ, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, क्योंकि आपने उसका जिक्र छेड़ा था, उसके इलाके में 80% स्कूल बंद है। सही, ठीक है, 80% स्कूल बंद हैं, 80% टीचर जो है क्वेटा, कराची और बड़े शहरों में बैठ के तनख्वाहें ले रही है, और इसी तरह हेल्थ सेंटर जो हैं, बेसिक हेल्थ सेंटर्स हैं, वो भी 80% बंद है। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। रशीद बलोच साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट व कालम निगार हैं और एक निजी टेलीविज़न के ब्यूरो चीफ भी हैं माशाल्लाह। नो कदरबनो यकीनन रशीद साहब से दागा तेर बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट